Good morning, everyone. This is the sum we will do now. Hindustan Manufacturing Limited gave notice of its intention to redeem its 6% debentures amounting to rupees 4 lakhs of rupees 100 each at rupees 102 and offered the debenture holders the following three options: apply the redemption money, to subscribe for. What were the three options offered to the debenture holders? Either they can go for 5% cumulative preference shares of 20 each at 22.50, means 2.50 will be the premium. Next option is 6% debentures at rupees 96, 4 rupees discount, and or to have their holdings redeemed for cash. So debenture holders for rupees 1,71,000 accepted proposal A, that is preference shares, and debentures holder for rupees 1,44,000 accepted the proposal B, that is debentures, and the remaining debenture holders accepted the proposal C. Pass the journal entries to record the above transactions in the books of the company. The redemption in cash, wherever applicable, was fully made out of profit. मतलब यहाँ पे हम जितना भी कैश पे करेंगे, द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स जितना है पूरा हमें प्रॉफिट से करना है, तो उसके लिए जितना अमाउंट कैश का होगा उतना पूरा वी विल हैव टू, इट इज आउट ऑफ प्रॉफिट। सो द एंट्री जहाँ पे हमने कल 25% ऑफ द फेस वैल्यू मिनिमम how much we will provide to the profit, it is 25%, but here they say that the redemption in cash jitna hai, it is fully out of profit. So let us solve this sum. Journal entries. In the books of Manufacturing Limited, Hindustan Manufacturing Limited, so serial number, particular, and rupees. So serial number, particulars, rupees. So first one हमें क्या ड्यू की एंट्री पास करनी पड़ेगी. द फर्स्ट एंट्री विल बी फॉर अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन. फिर उनको कैसे पे किया, देयर आर 3 वेज ऑफ पेइंग पेमेंट. सो ड्यू में डिबेंचर्स कैंसिल हो गया, डिबेंचर्स कैंसिल के बाद see whether we are paying any premium on redemption. Share is of 100, no, I'm sorry, debenture is of 100, but we are paying rupees 102. Matlab there is premium on redemption of 2 rupees. So we will write premium on redemption account debit 2. किसको देना है पैसे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट. सो यहाँ पे
4 lakh. They say rupees 4 lakh is the amount of debenture and one debenture is of 100. तो यहाँ पे हमें कितना कैंसिल हो जाएगा? डिबेंचर का कैपिटल ऑलरेडी दे दिया है 4 lakhs, और अगर हमें नंबर ऑफ डिबेंचर चाहिए तो 4 lakh डिवाइड बाई 100, it is 4,000 debentures into 100, we will get 4 lakh, and premium is of 2 rupees. So 4,000 into 2, we will get the premium. That is 8,000. तो टोटल कितना अमाउंट पे करना है डिबेंचर होल्डर्स को? 4,08,000. This is known as being amount due on redemption. Being amount due on redemption. Being amount due on redemption. इसके बाद look at the first option. We will also go to working note. The first option, तो क्या करेंगे? डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिट से अब पे करने वाले तो डेबिट करेंगे। 2 क्या देने वाले हैं? 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और देखो यहाँ पे वन मोर थिंग, 20 रुपीज़ का प्रेफरेंस शेयर वी आर पेइंग फॉर 22.50, मीन्स एक्स्ट्रा जो हम दे रहे हैं दैट विल बी स्टोर्ड अंडर सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो एक्स्ट्रा देंगे दैट विल बी शोन अंडर सिक्योरिटीज प्रीमियम। नाउ व्हाट वी विल डू, यहाँ पे let us see how many of them accepted the first option, 171. तो यहाँ पे ऑप्शन 1,71,000 लोगों ने एक्सेप्ट किया, तो 1,71,000 डिवाइड बाई या 1,71,000 प्लस 2% का प्रीमियम, क्योंकि हम प्रीमियम भी पे करेंगे, ये तो सिर्फ कैपिटल का अमाउंट है। सो अगर ऐसे करना है तो ऐसे प्लस 2% करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि हम कितना अमाउंट पे करेंगे पहले ऑप्शन में। तो पहले ऑप्शन में इट इज़ 1,71,000 plus 2%, which will come to 1,74,420। या तो इसको अलग से करना है तो कितना नंबर ऑफ शेयर्स रहेगा? 1,71,000 डिवाइड बाय 100 मीन्स 1710, इंटू 2 करेंगे तो हमें प्रीमियम भी मिल जाएगा। एंड वी नो कैपिटल इज 1,71,000। सी यहाँ पे 1,71,000 is given in the question, but it is only capital. We are also giving 2 rupees का प्रीमियम, 100 में 2 रुपीज़ का प्रीमियम दे रहे हैं। इस 2%, 2 रुपीज़ इज 2% ऑफ 100, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2% किया। हमें अगर ऐसे नहीं करना तो हम अलग वे से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 1,71,000 डिवाइड बाई 100 मतलब कितना शेयर्स को हम पे कर रहे फर्स्ट ऑप्शन में? 1,71,000। सो 1,71,000 शेयर्स को 102 रुपीज़ मिलेगा। तो ऐसा करेंगे तो भी हमें मिल जाता है 1,74,420। 1,74,420 में हम क्या पे कर रहे हैं?
फर्स्ट ऑप्शन में 22.50 का प्रेफरेंस शेयर, तो डिवाइड बाय 22.50 करो, डिवाइड बाय 22.50, वी गेट 7752, कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर, 5%. Preference shares of rupees 20 each issued at rupees 22.5. तो हमें मिल गया नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो यहाँ पे वी विल राइट, चाहिए तो लाइक दिस, इफ यू वांट टू राइट 1710 into 102, बिकॉज प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, 1,74,420, और यहाँ पे कितना प्रेफरेंस शेयर दे रहे, कितना प्रेफरेंस शेयर, वी आर गिविंग 7752 into 20, 7752 into 20 is coming to how much, it is coming to 1,55,040, फिर हम प्रीमियम भी दे रहे, 7752 into 2.50, that is equal to 19,380, प्रीमियम भी दे रहे, कितना शेयर हो जाता है जब हम डिवाइड बाय 22.50 करते हैं, बिकॉज दैट इज द इशू प्राइस, वी विल हैव टू ऑलवेज डू दैट, मतलब जितने में इशू करेंगे उससे डिवाइड करेंगे तो ही नंबर ऑफ शेयर्स पता चलेगा, तो ही हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता चलेगा. सो बी नंबर ऑफ डिबेंचर्स opted for option A. So now we will go to next option. So उसमें भी डिबेंचर होल्डर्स को डेबिट करेंगे, और सेकेंड ऑप्शन में क्या दे रहे, सेकेंड ऑप्शन में हम 6% डिबेंचर 96 रुपीज़ में दे रहे, मतलब 100 रुपीज़ का डिबेंचर हम 96 रुपीज़ में दे रहे, तो इसे तो इज इट इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, अगर हम 100 रुपीज़ का डिबेंचर्स 96 रुपीज़ में देंगे तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, मतलब हमें ये लॉस हो रहा है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट. सो यहाँ पे देखो हाउ मेनी ऑफ देम ऑप्टेड फॉर द सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन, 1,44,000, 1,44,000 opted for option B. तो यहाँ पे we will go to the second working note, option 2 या option B, because ये option B है, ये option A था, तो option B में it is 1,44,000, इस पे भी हमें 2% का प्रीमियम देना पड़ेगा, तो ये कितना होता है, 2% का प्रीमियम दिया तो it is coming to how much, 1,46,880, लेकिन इसको हमें ऐसे नहीं करना है, नंबर ऑफ शेयर्स डाल के करना है, तो डिवाइड बाय 100 किया तो हमें मिलता है 1440 इंटू
102 means 100 rupees डिबेंचर का एंड 2 रुपीज प्रीमियम का, तो ऑल्सो यू विल गेट द सेम अमाउंट। तुमको ऐसे +2% करके समझ में आ रहा है, या नंबर्स निकाल के फिर अमाउंट पेड ऑन रिडेम्पशन दैट इज 100 रुपीज डिबेंचर का, 2 रुपीज प्रीमियम का, 102। अब डिवाइड बाय सेकेंड ऑप्शन में हम डिबेंचर्स दे रहे 96 रुपीज में इशू कर रहे, हमेशा डिवाइड करते हैं इशू प्राइस में, सो वी आर गिविंग इट फॉर 96 रुपीज। सो देखो हाउ मेनी नंबर ऑफ डिबेंचर्स आर कमिंग, 1,46,880 divide by 96, I am getting 1530। I am getting number of debentures कितना मिल रहा है, 1530। 1530 6% debentures of ₹100 each issued at ₹96, मतलब 4 रुपये का डिस्काउंट दे रहे। डिबेंचर है 1530, 100 रुपीज का है, बट वी आर गिविंग फॉर 96, सो इट इज डिस्काउंट। तो यहाँ पे हमें ये डिबेंचर होल्डर कैसे मिला, 1440 इंटू 102 विच इज इक्वल टू 146,880। फिर हम कितना डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 1530 इंटू 100, डिबेंचर तो 100 का ही रहेगा, हमने इशू 96 में किया पर वो चीज तो 100 का ही है, 1,53,000 हो गया। फिर डिस्काउंट कैसे फाइंड करेंगे, डिस्काउंट कैसे फाइंड करेंगे, डिस्काउंट के लिए हमें कितना है नंबर ऑफ डिबेंचर, 1530, और कितने का डिस्काउंट दे रहे, 4 रुपीज का। सो यू विल गेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, 6120। 6120 इसको बोलेंगे बीइंग नंबर ऑफ डिबेंचर्स, बीइंग number of debentures opted for option B। नेक्स्ट लास्ट वन, जो बाकी बैलेंस है, जो बैलेंस डिबेंचर होल्डर्स है वो हम फाइंड करेंगे बैलेंस कितना है। दे से उनको क्या चाहिए, थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन इज टू पे बाय कैश, थर्ड ऑप्शन इज टू पे बाय कैश। तो लेट अस सी द बैलेंस, थर्ड ऑप्शन कितना है, सो ऑप्शन सी, देखते हैं बैलेंस कितना है, हमें 4 लाख पे करना है, कितना, 4 लाख, कैसे मालूम, सी हियर रुपीज 4 लाख, 6% डिबेंचर 4 लाख, सो यहाँ पे 4 लाख है, जिसमें से हमने कितना पे कर दिया, टोटल पे करना था 4 लाख, जिसमें ऑप्शन ए में हमने 171,000 पे कर दिया, फिर बी में हमने 144,000 पे कर दिया। अब कितना बचा है देखो, ये सब माइनस करने के बाद कितना बचा है, इट इज कमिंग टू 85,000। सो 85,000 में हमें क्या करना है, 85,000 प्लस 2% प्रीमियम भी देना है, 2% विच इज इक्वल टू हाउ मच, 86,700 हमें पे करना पड़ेगा। ये 86,700 कैसे आया, 85,000
डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 2 0 कम होके वी विल गेट 850 एंड हम इनको पे कर रहे 102 विच इज इक्वल टू 86,700। या तो आप डायरेक्टली 2% प्रीमियम ऐड करो और आप ऐसे फाइंड आउट करो 80, पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालो फिर मल्टीप्लाई करो अमाउंट कितना पे करेंगे रिडेम्पशन में 102, आपको सेम आंसर ही मिलेगा। यहाँ तो दोनों करने का ज़रूरत नहीं है, दोनों में से कोई एक वे में आप ट्राई करो। या तो आप ऐसे 1744420 निकालो एंड डिवाइड बाई 22 इशू प्राइस से डिवाइड करो, इधर कर सकते हैं। या यहाँ पे सेम वे इधर भी आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो या फिर आप नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के जैसे हमने हर सम में किया वैसे कर सकते हो। सो वी गेट 86,700, 86,700। फिर इसके बाद इसको बोलेंगे बीइंग नंबर ऑफ डिबेंचर्स ऑप्टेड फॉर ऑप्शन सी, ये भी हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम प्रीमियम दे रहे हैं। देखो रिडेम्पशन में देयर इज अ प्रीमियम ऑफ 8,000, उसके लिए हम कौन सा रिजर्व यूज करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम में 19,380 है तो उसमें से हम 8,000 साइड में रख सकते हैं। सो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट में है, यूज करेंगे रिजर्व है, यूज करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इज इन द डेबिट। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा। और कितना अमाउंट यूज करना है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 8,000 है, कैसे पता चला, सी ईयर 4,000 इंटू 2, टोटल प्रीमियम हमें 8,000 का देना था। बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिटर्न ऑफ या एडजस्टेड, रिटर्न ऑफ लिखना है, एडजस्टेड लिखना है, जैसे आपको लिखना है। अब अवर लास्ट एंट्री क्वेश्चन में बोला गया है कि जितना भी हम कैश में रिडेम्पशन करते हैं वो पूरा हमें प्रॉफिट से प्रोवाइड करना है। तो हमने कैश में रिडेम्पशन कितना किया 86,700, पर 86,700 में हमें सिर्फ क्या चाहिए, फेस वैल्यू ऑफ द रिडेम्पशन। प्रीमियम के लिए तो हमने अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया, प्रीमियम जो था यहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स को हमने 100 रुपीज का कैश, 100 रुपीज का फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर, 2 रुपीज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है। तो मुझे 850 में सिर्फ जो 100 रुपीज हमने डिबेंचर के लिए जो प्रोवाइड किया है वो अमाउंट हम पूरा प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम द प्रॉफिट। सो DRR, फिर DRR या सिंकिंग फंड, फिर उसको हम जनरल रिजर्व में राइट ऑफ करते हैं। सो यहाँ पे हम कंबाइन एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू जनरल रिजर्व, हाउ मच इज द अमाउंट 850 शेयर्स को, जो 100 रुपीज हम फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर, यहाँ पे हम प्रीमियम नहीं लेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ फेस वैल्यू लेंगे। तो इसको बोलेंगे बीइंग प्रॉफिट, बीइंग प्रॉफिट इक्वल टू, या तो बीइंग इक्वल, बीइंग अमाउंट
equal to face value of debentures redeemed in cash. हमने क्या किया, वो अमाउंट को ट्रांसफर किया विच इज इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स रिडीम्ड इन कैश. जो हम कैश में रिडीम, जो कैश में बाकी जिसको प्रेफरेंस शेयर दिया, डिबेंचर्स दिया, उस उतना हमने प्रोवाइड नहीं किया. हमने बस जो कैश में पे किया है उसका जो फेस वैल्यू है वो हमने ट्रांसफर किया फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू जनरल रिजर्व. विद दिस sum is done. Thank you very much everyone.